Good morning, everyone. We welcome you to this devotion in the name of Jesus. आप सभी को गुड मॉर्निंग। इस डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। I believe all those ones who are with us in this devotionals know that we are in a series called Winning the Battles. वो सारे लोग जो डिवोशनल को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हम सीरीज में हैं या श्रृंखला में हैं जिसका नाम है युद्धों को जीतना। In these times when we are quarantined, when we are going through difficult times, और इन समयों में जब हम कठिन समय से जा रहे हैं और समाज से अलग है, the Lord has been faithful to speak to each one of us. परमेश्वर विश्वास योग्य रहे हैं और हम हर एक से बात कर रहे In हैं। this series that we saw the two parts, part 1 and part 2. और इस सीरीज में हमने दो भाग को देखा, पहला भाग और दूसरा भाग। In the first part that we saw two principles. और पहले भाग में हमने दो सिद्धांतों को देखा। Number one principle that we saw, if you want to win the battle, that we must identify our problems. और पहले भाग में हमने देखा और पहला सिद्धांत देखा कि यदि हमको युद्ध को जीतना है तो हमने अपने समस्याओं को पहचान लेना है। Number two principle is that we must admit to our weaknesses. और दूसरा सिद्धांत ये है कि हमको अपने खामियों को, अपने कमियों को कबूल करना है, मान लेना है। And yesterday, और कल in the part 2, और दूसरे भाग we में saw the importance of seeking the face of God in the midst of battles. हमने देखा कि कैसे युद्ध के बीचों बीच हमको परमेश्वर के मुख को खोजना We है। always run everywhere except running to God. देखिए, हम हर दिशा दौड़ते हैं लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं We जाते saw हैं। how important it is to run to God in the times of trouble. हमने ये देखा कि संकट के समय में परमेश्वर की ओर भागना कितना महत्वपूर्ण And है। as a fourth principle yesterday that we saw, it is a must for us to trust the Lord. और चौथा सिद्धांत हमने देखा कल कि जरूरी है कि हम अपना पूरा भरोसा यहोवा पर रखें। Today, if you want to really win the war, if you want to really win the battles, what we're going to learn today is very, very important. अगर हम और आप जो है सच में युद्धों को जीतना चाहते हैं तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। I want us to quickly open our Bibles to 2 Chronicles chapter 20 verse 17. हम अपने पवित्र शास्त्र में देखेंगे दूसरे इतिहास का किताब 20वां अध्याय और 17वां I वाक्य। must say that this verse is really, really loaded. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाक्य में बहुत सारी बातें हैं It can minister to you the deeper truths of winning the battles. और इसमें जो है आप पहचान सकते हैं, ये वाक्य आपकी सेवकाई कर सकती है कि कैसे आप युद्धों को जीत सकते हैं। I'm reading for you from the New King James Version. अंग्रेजी में न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ा जा I रहा want है। to go very slow so that you may understand every word there. मैं धीरे से पढ़ूंगा ताकि आप हर एक शब्द को समझ पाए। It says you will not need to fight this battle. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। Full stop. पूर्ण Position yourselves, comma, stand still and see the salvation of the Lord, comma, who is with you, O Judah and Jerusalem. हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। And further down it says, do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। This particular verse begins with a contrast. और ये वाक्य जो है कॉन्ट्रास्ट के साथ शुरू If you होता don't है। understand the things properly, if you're not led by the Spirit of God, you may not understand this verse at all. अगर हम और आप पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है तो शायद हम ये वाक्य को समझ नहीं पाएंगे। The Lord says, you will not need to fight this battle. यहोवा कहते हैं कि आपको ये युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं But पड़ेगी। still further down he goes in the same verse. आगे चलकर वो कहते हैं, He says, tomorrow go out against them. लेकिन कल जो है तुम उनके विरुद्ध में जाना। Hallelujah. Hallelujah. I don't know how many of you understand this. हम नहीं जानते कितने लोग इस बात को समझते It हैं। says, do not fight your battle. और यहोवा कहते हैं कि तुम्हें लड़ने की जरूरत And नहीं then he says पड़ेगी। that take the position. फिर वो कहते हैं कि जाकर जो है अपना स्थान ले लो। My brothers and sisters, मेरे भाइयों मेरी you बहनों, need to understand what it says here. हमको समझ लेना है कि यहाँ पे क्या It कहा गया says, है।
position yourself. लिखा हुआ है कि अपने आप को जो है आप ठीक ठीक रखना, What it means to position yourself. अपना पोजीशन ले लेना, इसका If you क्या मतलब है? understand this word, position yourself, अगर आप ये शब्द को समझ लेंगे कि You अपने be- आप को अपना पोजीशन ले लेना, you'll be able to relate to the entire verse very beautifully. तो आप ये वाक्य को जो है अच्छी तरह से समझ What पाओगे। it means to position ourselves. अपने आप को या अपने पोजीशन को ले लेना या Among- अपनी जगह को ले लेना, इसका क्या मतलब है? Among believers, there are two extremes. और विश्वासियों में जो है दो एक्सट्रीम्स है। You know, one set of people, they trust the Lord. They say that they trust the Lord and leave everything to God, and they don't do anything. Like a lazy couch person, you sit down and don't do anything at all. और एक प्रकार के विश्वासी ऐसे होते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बस बने रहते हैं। Hallelujah. That is one extreme. ये एक प्रकार के विश्वासी लोग The होते other हैं। extreme is दूसरे प्रकार के विश्वासी they लोग say that they trust in the Lord, वे कहते हैं कि उनका भरोसा परमेश्वर पर है, यहोवा पर है, and whosoever watches them और जो कोई उनको देखता है, can very clearly see that there is no God in whatever that they're doing. जो कोई उनको देखता है उनको ये जान पड़ता है कि इसमें परमेश्वर है ही नहीं। It looks as though they're doing everything in their own strength. ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है अपने बल से खुद से ही कर रहे हैं। One person too spiritual, एक प्रकार के लोग जो है विश्वासी लोग बहुत ही ज्यादा अत्यधिक आत्मिक, leaving everything to God. सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। Another set of people too physical, और दूसरी श्रेणी के लोग जो है वो अपने आप में या खुद से ही काम करते you know, हैं। they want to use every bit of their strength to do everything in their strength, in their understanding. वो अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपने समझ का प्रयोग करते हैं चीजों को करने के But लिए। that is not the truth. लेकिन ये सत्य नहीं है। God's word doesn't speak like that. परमेश्वर का वचन जो है ऐसा नहीं बोलता हमसे। When the word of God, if you read the word of God in this place, अगर आप जो है परमेश्वर के वचन को इस जगह पे पढ़ो it clearly says position तो yourself. यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि खड़े रह जाओ, What it means to position ourselves. अपना पोजीशन ले लो। इसका क्या मतलब है? For a better understanding, और बेहतर समझ के let लिए me bring an illustration. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। Imagine somebody is running in 100-meter race. आप इसकी कल्पना करें कि कोई व्यक्ति जो है 100 मीटर के रेस को दौड़ रहा है। This person has prepared himself इस व्यक्ति ने अपने आप को तैयार कर लिया है for months and years that this person has prepared और himself, महीनों और सालों अपने आप को इस व्यक्ति ने तैयार कर लिया है and he sets himself on the track. और वो जो है खड़े हो जाता है दौड़ने के लिए। All of them are there, सारे लोग हैं and this person is also और there. ये व्यक्ति भी खड़ा हुआ है। And at the sound of the gun, और जब वो गन को चलाते हैं they all take off. ये सारे भागने लग जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want us to imagine yourself as that person. आप अपने आप की कल्पना करें कि आप वो व्यक्ति हैं The Lord wants us to prepare ourselves in such a manner और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को इस तरह से तैयार करें that as though preparation only can help us to win the battle. कि मानो हम अपने आप को ये तैयारी ही जो है हमको युद्ध में जिता सकता है। Prepare in such a way. उस तरह से तैयारी करो, Don't leave any stone unturned. आप उस तरह से तैयारी करो Put in every effort possible. और जो भी आपको उसमें लगाना है, तैयारी में लगाना है, वो अपने परिश्रम को लगाओ। But when you go on the track, लेकिन जब आप दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हो don't depend on your own physical strength. तो अपने शारीरिक बल पर आप भरोसा बिल्कुल मत करना। Stand as though the Lord alone can help you to win this. आप उस तरह से खड़े रहना कि परमेश्वर ही, केवल परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं ये जीतने के लिए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, when you talk about positioning yourself, जब हम कहते हैं कि अपना पोजीशन ले लो, God expects you to wear the full armory परमेश्वर ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपना पूरा अस्त्र शस्त्र पहन लो, as though that you're going to the war, जैसे कि मानो आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, fully prepared, पूरी रीति से तैयार, but not depending on yourself. लेकिन अपने आप पर भरोसा करते हुए नहीं। As that athlete और जैसे वो स्पर्धक जो दौड़ रहा था who runs at the sound of the gun, और जैसे वो गन चलाई जाती है तो वो दौड़ने लग जाता it है, is not he who's running, वो नहीं दौड़ रहा है, it is the one whom he is trusting.
He's the one who's helping to run that race. जिस पर वो भरोसा कर रहा है वो उसकी मदद कर रहा है दौड़ने के When लिए। you and I run like that, जब हम और आप जो है ऐसा दौड़ते हैं, the Lord puts the wind under wings and takes us to the destination ahead of everybody else. परमेश्वर हमारे पंखों के नीचे उस हवा को डालते हैं और उस जगह में हमको ले जाते हैं जहां पे वो चाहते हैं कि हम हो। In fact, God Almighty wants us to wear the first, the gold medal, the winner's medal on our neck and stand in that race to begin to run. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जो है वो मेडल को पहने और उस रेस में खड़े हो जाए दौड़ने के लिए। In fact, when he talks about position, he wants us to see ourselves, position ourselves on the number one place even before we begin the race. और जब वो कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ तो वो चाहते हैं कि हम अपने आप को नंबर 1 पोजीशन में खड़ा हुआ देखें दौड़ को दौड़ने से पहले ही। That is exactly what he's saying here. और यहाँ पे यही कह रहे हैं, You will not need to fight this battle. तुम्हें ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Position yourself. ठहरे रहना। And further it says stand firm. और खड़े रहना। What is the meaning of stand firm? इसका क्या मतलब है? You and I got to stand firm in the faith in the Lord Jesus Christ. हमको जो है परमेश्वर के विश्वास में, मसीह यीशु के विश्वास में दृढ़ खड़े रहना है। When we stand firm in the faith, जब हम विश्वास में दृढ़ खड़े रहते we हैं, will see the salvation of God manifest in our life. तब हम जो है परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे हमारे जीवन में कार्यशील होते हुए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, make up your mind अपने मन को बना लीजिएगा that you will position yourself. कि आप अपने आप को पोजीशन करेंगे। When it comes to fighting the battle, जब युद्धों को लड़ने की बारी जब आती है, when it comes to preparation time, जब अपने आप को तैयार करने की you're बारी going to आती prepare है, yourself fully. हम पूरी रीति से अपने आप को तैयार But करेंगे, you're not going to depend upon your preparation. लेकिन हम अपनी तैयारी पर भरोसा नहीं करेंगे। You will depend upon the Lord. हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे। When you depend on the Lord, जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते the हैं, Lord will work all things out for you. परमेश्वर हमारे लिए सारी बातें करेंगे। You will begin to experience the supernatural naturally. आप जो है अलौकिक को स्वाभाविक रूप में अनुभव करने I लगेंगे। pray that may be a portion in the name of Jesus मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ कि यही तुम्हारा भाग हो, आपका भाग हो यीशु मसीह के नाम I'm से। telling you, even tomorrow, what the Lord is about to speak to us is really exciting. कल भी जो परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं वो बहुत ही उत्तेजित करने वाली बात है। Whatever the Lord spoke just now, जो भी अभी परमेश्वर ने बोली, I want you to hear it once again हम चाहते हैं फिर एक बार आप सुन लीजिएगा and take it to the prayer. और आप प्रार्थना में ले जाइएगा। Identify the areas where you need to prepare yourself. आप जो है वो क्षेत्रों को पहचान लीजिएगा जहां पे आपने अपने आप को तैयार कर लेना है। Don't be a lazy person. आप एक आलसी व्यक्ति मत बने Don't रहना। be a pouch potato. आप जो है एक जगह पर जो है बैठे हुए व्यक्ति मत बने रहना। Don't say, oh, I'm trusting in the Lord. Just don't say, I'm trusting in the Lord. आप ये मत कहना कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए हूँ। As you're trusting in the Lord, जैसे आप भरोसा कर रहे हैं, you better do your bit. आपको जो करना, आपसे जो अपेक्षा परमेश्वर करते हैं वो बातों को आप करिएगा। It is then the Lord will bring the glory to Himself. तब जाकर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। And I pray that this message has ministered to you. और मेरी प्रार्थना ये है कि ये संदेश ने आपकी सेवकाई की Looking है forward to see you more often. और आपको देखना पसंद करेंगे। Not just in the devotional, very soon we are planning Bible studies. सिर्फ डिवोशनल में नहीं, बहुत जल्द बाइबल स्टडीज भी प्लान कर And रहे those हैं। Bible studies are going to be in the end times and the book of Revelation. और वो बाइबल स्टडीज जो है, पवित्र शास्त्र का अध्ययन जो है अंत के समय के बारे में होगा, प्रकाशित वाक्य की किताब में होगा मूल Get रूप ready से। for that. आप उसके लिए भी तैयार हो In the जाइएगा name of Jesus यीशु मसीह के नाम Christ. से। This is a time for us to eat as much spiritual food as और possible. ये ऐसा समय है कि हम जो है आत्मिक खाना को खा ले। May the Lord help us in the name of परमेश्वर Jesus. हमारी मदद करे यीशु के नाम से। We are praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, We'll continue to pray for you. हम प्रार्थना करते Stay रहेंगे। tuned to God. आप परमेश्वर के संपर्क में बने रहिएगा।